I think all these ladies have come with so much enthusiasm and confidence, and I think Moini's done a phenomenal job by giving a platform to so many women who have so many aspirations. They want to come out there and shine like the stars they are. So I think that's something amazing that you've done, Moini. But what I think that's more amazing, and the reason I'm here, is because for the last 20 years I've been working with Cancer Patients Aid Association to help underprivileged children fight cancer. And what I love most about tonight's event, what I love most about Moini's organization and all the ladies who are participating tonight is all of them have created genuine social impact. All of them have gone out to raise funds to help children fight cancer. And the incredible news that I'd love to share, and I feel proud sharing, and I think you should be very proud too, over the last 4 years now, Moini, her organization, all these wonderful ladies who are participating tonight in this competition have helped raise 3 crore rupees to help save more than 350 underprivileged children who are battling for their life against cancer. So thank you so much. And I think when you ask me what's the most important thing tonight, I think that's the most important thing tonight, to have a heart of gold, because true beauty lies within you. Thank you so much, Vivek. Thank you. And you've been very kind, you've been very generous. Exactly, this is what we are looking for. And associating with Cancer Patients Aid Association has been an experience within itself. They have given us an opportunity to contribute, to raise some funds for cancer affected kids. And I feel glad, I feel pleasure saying this, that we could do some justice and we could create some difference in the society. Definitely, when a personality like Vivek Oberoi join hands, the inspiration and the motivation is different altogether. So yes, again, credit goes back to Vivek, sir. No, thank you. Thank you so much. All credit is to you and all the lovely ladies who have been participating over the years. And the platform that you've given becomes not only a platform for outer beauty, but a platform for inner beauty also. Because true beauty lies in the ability to go out there and help people, especially little children who need their help fighting such a severe illness like cancer. So thank you so much for doing that. Our organization, Cancer Patients Aid Association, is truly filled with gratitude for the kind of support that you and all the wonderful women here tonight have given us. And sir, we'd also like to ask you, what is the one thing you'd like to tell our queens tonight? Well, I think I'd like to say that all of you are here tonight to be beauty queens, which is great. But with the wonderful service that you've done for the children who are fighting cancer, I think all have become queens of hearts. How are you? So क्या कहना चाहेंगे मिसेस के लिए जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज को भी जोड़ा गया इसके साथ साथ, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा सारी चीज़ें हिंदी में? यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। मुझे लगता है कि मोहिनी जी ने और उनके जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने एक मंच दिया है इतनी सारी औरतों के लिए, अपनी जो उनका एक बचपन का सपना है उसे पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, अपनी भीतर के जो टैलेंट्स हैं उस टैलेंट को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो चमक सकती हैं, जहाँ पे वो सितारे बन सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग. लेकिन मेरे दिल को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ बात है, जो छूती है, वो ये है कि मोहिनी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था जो है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, जो पिछले 20 साल से हमने कई हज़ारों लाखों बच्चों की मदद की है जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं और बहुत मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके के हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उनकी हमने मदद की है. और इस मदद में, इस मुहिम में मोहिनी जी और आज की सारी जो ब्यूटी क्वींस है, जो सारी कंपेटिटर्स हैं, अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं. और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए कि पिछले 4 साल में आपके माध्यम से, आपके सारी कंपेटिटर्स के माध्यम से हमने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए 3 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं. और इस पैसे से 350 से ज़्यादा नन्ही जाने जिनको कैंसर है, गरीब घर के किसानों के बच्चे, उनकी मदद हुई है, उनकी जानें बचाई गई हैं. सो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया. मैं हमेशा ये सोच रखती हूँ और मानती हूँ कि हम सिर्फ ज़रिया होते हैं. तो मैं खुद को और इस प्लेटफॉर्म को एक ज़रिया कहना चाहूँगी कि मैं हर साल हज़ारों लेडीज़ को इस संस्था से जोड़ सकी और ये ज़रिया बनकर फंड रेज कर सकी
और कहीं पे मदद पहुंचा सके। और कहा जाता है कि शादी के बाद औरतों का जो करियर है वो खत्म हो जाता है, पूरा घर की तरफ हो जाता है, लेकिन आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया मिसेस के लिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको किसने इंस्पायर किया? सो कहा जाता है कि आपके पास दो ज़िंदगी होती है और दूसरे का एहसास तब होता है जब आपको पता चलता है कि आपकी एक ही ज़िंदगी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो बस मिसेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक्सपीरियंस और उनका एजुकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। तो यहाँ पर ही वो ये अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज करती हैं। मोहिनी जी जैसे कहा अभी मिसेस के बारे में कि दो जिंदगियां होती हैं, मेरा ये मानना है कि हर लेडी के दो जिंदगी के अलावा दो करियर भी होते हैं। और एक करियर ये होता है घर संभालना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना। जब कोविड हुआ था बीच में, तो मेरे लिए जीवन में पहली बार एहसास हुआ और अप्रिसिएशन हुआ कि प्रियंका मेरे घर में कितना कुछ संभालती है। क्योंकि जब मैं घर पे था तब मुझे सारी चीज़ें नज़र आने लगी कि कितना बिजी रहती हैं, बच्चों को किस तरह से सही संस्कार, सही वैल्यूज़ के साथ में बड़ा करना, उनको प्यार देना, एक सुंदर घर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। औरतें जो हैं वो मर्दों से डबल मेहनत करती हैं और मुझे लगता है ये मंच एक अप्रिसिएशन है उस बात का। सारी मिसेस जो हैं उन सबको मेरी तरफ से सल्यूट है। और जब ब्यूटी के अलावा हम इनर ब्यूटी पे फोकस करते हैं, जिनका सिर्फ चेहरे ही नहीं सुंदर हैं बल्कि दिल भी सुंदर हो, जो एक्चुअल दूसरों के गरीब बच्चों के लिए, कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए इतना अच्छा पहल जो उठा रहे हैं, तो उनके लिए आई विश देम नॉट ओनली बेस्ट ऑफ लक फॉर टुनाइट्स कंपटीशन बट बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। गॉड ब्लेस। एक सर आप साथी फिल्म आपकी आ रही है, थर्ड वन आपकी मलयालम पर, एंड आपके रोल को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है इंस्पेक्टर वाला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, 30 जून को मेरी फिल्म कड़वा रिलीज हो रही है। पिछली बार जो मैंने मलयालम में फिल्म की थी लूसीफर, बहुत बड़ी हिट रही। उसी टीम के साथ में पृथ्वीराज जो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, उनके साथ में मैंने ये फिल्म बनाई। और ओरिजिनली मैं ये फिल्म शायद करने भी नहीं वाला था, जब पृथ्वीराज का फ़ोन आया और उसने मुझे कहानी सुनाई, मुझे इतनी पसंद आई कहानी, इतना मज़ा आया कि मैंने कहा कि वी मस्ट डू दिस फिल्म टुगेदर। तो डेटें एडजस्ट करके, क्योंकि मैं उस समय रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स के लिए शूट कर रहा था, तो किस तरह से सारे डेट्स को एडजस्ट करके मैंने ये फिल्म कंप्लीट की है। और बहुत फास्ट टाइम के अंदर बहुत हाई क्वालिटी फिल्म कंप्लीट हुई है। सो वी वेरी एक्साइटेड।